Hello, welcome to Career Launcher. Welcome back. So today we are back with Quantitative Aptitude CAT 2025 series. Today we are going to do Arithmetic, and this is uh, we are going to do today time and work. We have already done one session before, and this is the second session of time and work, and we are going to see what kind of questions we have got in CAT. So let's see. Okay, so we are going to start with question number one. And what is question number one? Question number one says that a person can complete a job in 120 days. Okay, if he works alone on day one. Okay, uh, so basically, if he's working alone, a person can complete a job in 120 days. So basically, what I'm going to do, I am going to assume the efficiency of that person. So efficiency of that person is 1. So if efficiency is 1 and he can finish the job in 120 days, so I can say total work is going to be 120 units. So I have to finish a total work of 120. Okay. So on day 1, he works alone. Okay. So if he's working alone, how much work he's going to do? He's going to do 1 unit. Now, on second day, he's joined by another person who has exactly equal efficiency. So now next day, there are 2 people working, and both of them have efficiencies of 1. So how many units they are going to do? 2 units. On the third day, 3 log. So 3 people are going to do 3 units. 4 people are going to do 4 units, and so on. And in n days work will be completed, and that's what question is talking about. In how many days how many days are required to finish the job. So matlab ye question ye keh raha hai ki hame n ki value chahiye, right? So basically I can say that 120, and that's equal to, this is a formula of summation of n consecutive terms. So that is n into n plus 1 divided by 2. So I can say 240, and that's equal to n into n plus 1. Now what people are going to think कि हम लोग इसको ओपन करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, वो नहीं करेंगे. So what we are going to do, this is the product of 2 consecutive numbers. So n और n plus 1 दो consecutive number है, और इन दोनों का जो product है वो 240 के बराबर है. राइट. सो बेसिकली 2 consecutive numbers का जो product है 240 के बराबर है. So basically what I can do, 10 into 11. Okay, 110. So number थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. So let's say 14 into 15. So 14 into 15 comes out to be what? 210, right? And okay, so let's go for 15 into 16, and 15 into 16 comes out to be 240. So n comes out to be 15, n comes out to be 16, and this sum comes out to be 240. So what is the value of n that we are going to get? That's going to be 15. So इसका आंसर क्या आएगा? 15. So इस टाइप के क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन गो विद हिट एंड ट्रायल, यूज कैलकुलेटर. सो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिगर दिस थिंग आउट. So whenever these kind of questions you are going to get, जहाँ पे efficiency सबकी सेम है कि एक आदमी ऐसे कर रहा है, दूसरा आदमी ऐसे कर रहा है, तीसरा आदमी ऐसे कर रहा है, या फिर 5 लोग किसी काम को ऐसे करते हैं, 10 लोग किसी काम को ऐसे करते हैं. So we solve these type of questions like this. Okay. Up, what is this question saying? It is saying that a tank is fitted with pipes, some filling it, rest are draining it. Okay. All filling pipes fill at the same rate, all draining pipes drain at the same rate. अच्छा, ठीक है. So जितने filling pipe हैं, वो मतलब अगर एक पाइप है वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से डाल रहे हैं, तो सारे फिलिंग पाइप 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से डाल रहे होंगे. और अगर एक ड्रेनिंग पाइप 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो सारे ड्रेनिंग पाइप 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से निकालेंगे. दैट्स व्हाट दिस मीन्स. ठीक है. सो पहला पॉइंट हमने फिगर आउट कर लिया. ठीक है. अब empty tank completely filled in 6 hours when 6 filling and 5 draining are there. Okay. 60 घंटे लग जाते हैं अगर 5 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग है. So basically what I'm going to do in this question, I am not, so whenever we have these kind of questions जहां if equal efficiency वाली चीजें हैं, ठीक है. So यहाँ 6 फिलिंग की efficiency सेम है, 5 ड्रेनिंग की efficiency सेम है, लेकिन इसकी और इसकी इफिशियंसी सेम नहीं होगी, अलग अलग ही होगी. अलग अलग हो भी सकती है, हो सकता है सेम भी हो, आई डोंट नो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस
मेरा असम्पशन ये नहीं है इसमें कि आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम दिस पॉइंट कि टोटल वर्क अज्यूम कर लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम टोटल वर्क. सो व्हाट वी आर गोइंग टू अज्यूम इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू अज्यूम द एफिशिएंसी. ठीक है. एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी है 1, एक ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी है d. So in this question we are going to assume the efficiencies. So ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी माइनस डी ले लेते हैं क्योंकि वो तो नेगेटिव काम कर रहा है, फिलिंग वाला भर रहा है, ड्रेनिंग वाला निकाल रहा है, सो एफिशिएंसी विल बी माइनस डी, राइट. 6 फिलिंग पाइप 1 घंटे में 6 भर रहे हैं, 5 ड्रेनिंग पाइप 1 घंटे में 5d निकाल रहे हैं. सो दिस मच वाटर इज गेटिंग इन 1 घंटे में. तो 6 घंटे में कितना पानी जाएगा into 6, and that is the capacity of the tank, right? Okay. This is also equal to what? 5 फिलिंग पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे 5, 6 ड्रेनिंग पाइप 1 घंटे में कितना निकालेंगे 6d, और ये कितनी देर चल रहा है 60 hours. So total work is equal to this, total work is equal to this. Now what I'm going to do, solve it for d. So this comes out to be 10. So यहाँ पे लिख सकते हैं 6 minus 5d, and that's equal to what? This is going to be 50 minus 60d. So d वाला टर्म इधर ले आते हैं, so 55d, and that becomes 44. So यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5. Okay. Okay. So what was my capacity? So my capacity or my total work was 6 minus 5d. So 5d is what? 4 into what? Into 6. So that was my capacity, right? So 2 into 6, total work was 12. Okay. So ये मेरे पास टोटल काम आ गया. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सो बेसिकली मेरे पास टैंक आ गया, मेरे पास सबकी एफिशिएंसी आ गई. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट tank get completely filled when 1 draining and 2 filling pipe. So 2 filling की efficiency क्या है 2, 1 draining की efficiency क्या है 4/5. Okay, how many hours we are talking about? We are talking about t hours. Okay, and that is equal to total work. How much it is? 12. Okay, so this comes out to be 6/5 into t, and that's equal to 12. So this comes out to be 2. So t की वैल्यू आ जाएगी 10. So 10 घंटे में काम पूरा खत्म हो जाएगा. Now these kind of questions, I won't say these kind of questions are rare. They are not, because today we are going to see multiple questions of these type. क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कैट में आ चुके हैं, सिमिलर चीज, सिमिलर क्वेश्चंस, वैल्यूज माइट बी डिफरेंट, और वो फिलिंग ड्रेनिंग की जगह कुछ और डाल देंगे, लेकिन इवेंचुअली क्वेश्चन विल बी मोर और लेस सेम. स्टार्ट करते हैं. Humans and robot can perform a job in different efficiency. सेम चीज. सो मतलब सारे ह्यूमंस की एफिशिएंसी सेम है, रोबोट्स की एफिशिएंसी सेम है, लेकिन ह्यूमंस और रोबोट्स की एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है. सो इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, नॉट सेम बट सिमिलर. ठीक है. सो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. एक ह्यूमन की एफिशिएंसी मान लेते हैं क्या 1, एक रोबोट की एफिशिएंसी मान लेते हैं क्या r. ठीक है. 15 ह्यूमन. सो टोटल वर्क की अगर बात करें, सो 15 ह्यूमन मतलब 15, 5 रोबोट मतलब 5 आवर. कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 30 days. सो इनटू 30. ओके. 5 ह्यूमन का मतलब 5, 15 रोबोट्स 15 आवर. कितने दिन ले रहे हैं 60 days. सो इनटू 60. सो 15 ह्यूमन और 5 रोबोट 30 days ले रहे हैं. सो 15 ह्यूमन 5 रोबोट 30 days ले रहे हैं. 5 ह्यूमन 15 रोबोट्स, 5 ह्यूमन 15 रोबोट 60 days ले रहे हैं. ठीक है. सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 15 प्लस 5 आवर, एंड दैट्स इक्वल टू 10 प्लस 30 आवर. Okay, so from here what we are going to get? We are going to get 25 r, and that's equal to 5. So r comes out to be 1/5. तो अपने पास एक ह्यूमन की एफिशिएंसी हमने अज्यूम कर ली थी,
रोबोट की इफिशियंसी हमने निकाल ली, अगर ह्यूमन की इफिशियंसी आ गई, रोबोट की इफिशियंसी आ गई, सो बेसिकली अपना टोटल वर्क भी आ जाएगा. सो whenever we get these kind of questions, we don't assume the work. We start with assuming the efficiency and then we calculate the work. So basically in the last session what we have done, so in the last session we have taken the questions जहाँ पे हम work assume करते थे, efficiency निकालते थे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम efficiency assume करके work calculate कर रहे हैं, right? So basically r is equal to 1 by 5, so 5r comes out to be 1. Okay, so total work is 15 plus 5r. इसका मतलब 15 plus 1, that is 16 into 30. So I can say my total work is 480. Okay. Now what question is saying, 15 ह्यूमन काम को कितने दिन में करेंगे? सो वर्क इज 480, 15 ह्यूमंस की इफिशियंसी क्या है? 15. टाइम कितना है, कितने दिन लग रहे हैं? d days. So let's calculate. So this comes out to be what? 32. So answer of this question is going to be option B, that is 32 days. So that's how we can calculate the answer of these types. If you see question number 2 and question number 3 were more or less same, more or less similar, not same actually. Okay. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम. सो अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसा ही है, बहुत ज्यादा सिमिलर है. एक वाटर टैंक है, एंड अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईयर्स अपार्ट नहीं है, बहुत मतलब 22, 23, 24, 21. सो पिछले 4, 5, 6 साल में इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए. आई एम डूइंग द थर्ड क्वेश्चन दैट इज ऑफ सिमिलर टाइप. सो मतलब 4, 5, 6 साल में अगर 3 से 4 क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं, इट मींस द रिपीटिशन इज देयर. सो दिस यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. सो एक वाटर टैंक है, उसके दो पाइप हैं, ए और बी. ओके, इनलेट ए ओपन होता है, पानी आता है. इनलेट बी है, सो बेसिकली दोनों इनलेट है तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी. क्वेश्चन नंबर 2 में एक इनलेट था, एक आउटलेट था, मतलब पानी आ रहा था, एक से पानी जा रहा था. ठीक है. So what I'm going to do, I'm going to assume efficiency of A is 1, efficiency of B is B. So I am assuming efficiency of A is 1, efficiency of B is B. लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि B की 1 मान लो, A की कुछ, A की A मान लो, या if you want to assume any other number, it's fine. I generally prefer to take 1, but if you are comfortable with some other number, that's fine. If you want to take efficiency of A as 2, go ahead. आंसर वोंट चेंज. लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एक ही वैल्यू अज्यूम करनी है, एक से ज्यादा वैल्यू आप अज्यूम नहीं कर सकते. सो अगेन इन द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव डन, उसमें वर्क अज्यूम करते थे, इफिशियंसी निकालते थे. तो वर्क एक था, इफिशियंसी अकॉर्डिंगली आती थी. यहाँ पे एक की इफिशियंसी अज्यूम करके दूसरे की इफिशियंसी और वर्क दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. सो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप दोनों वैल्यूज कभी भी आप अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने दोनों वैल्यू अज्यूम करी तो मोर और लेस आपने आंसर ही अज्यूम कर लिया. इसलिए दोनों वैल्यू कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे. ठीक है. सो ऑल इनलेट पाइप बी व्हेन ओपन, ब्रेक द बॉटल. ठीक है, सेम कहानी है. द एम्प्टी टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट्स इफ 10 इनलेट ऑफ टाइप ए. सो 10 इनलेट का मतलब हो गया 10 into 1, 10. 45 इनलेट ऑफ टाइप बी, सो 45, सॉरी इट शुड बी प्लस क्योंकि इनलेट ही है, आउटलेट होता तो माइनस करते. This and into 30, that's our total work. Okay, अगर 8 इनलेट टाइप ए के हैं, सो 8, 18 इनलेट टाइप बी के हैं, सो 18 बी, तो कितना टाइम लग रहा है? तो 1 आवर लग रहा है. सो 1 आवर का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट्स. यहाँ पे 30 मिनट लिया है, इसलिए यहाँ पे 60 मिनट लेना पड़ेगा. Now this comes out to be 2. Okay, so I'm going to get 10 plus 45b, and that's equal to 16 plus 36b. तो यहां से आ गया 9b and that's equal to 6. So b comes out to be 2 by 3. So मतलब efficiency of A is what? 1. Efficiency of B is what? 2/3. 2 by 3. Okay. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि so basically what is my total work? So total work is going to be 60. So एक काम करते हैं, सीधे ही निकाल लेते हैं. So total work is 60. This 8 into 18b, so basically 18b comes out to be 12. so ये मेरा टोटल वर्क हो गया. ठीक है, दिस इज माय टोटल वर्क. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने मिनट लगेंगे. सो 3 मिनट्स लगेंगे. ठीक, कितने
टाइप ए के हैं 7, तो 7 का मतलब हो गया 7 प्लस टाइप बी के कितने हैं 27, सो 27 की एफिशिएंसी क्या हो गई 27 into 2/3, that is going to be 18. Okay, so what we are going to get, I am going to get 60 into 20 and that's equal to t into 25. 5 से काट दिया बचा 5, कितना आया 12, 5 से काट दिया कितना कटा 4, so t comes out to be 48. So basically कितना टाइम टोटल लगेगा, we are going to get a total time of 48 minutes and that's how we are going to solve the question. So if you see in the last three question, question number 2, question number 3, question number 4, क्या हमारी अप्रोच थोड़ी सी भी अलग हुई? नहीं, सारे क्वेश्चंस में सेम अप्रोच है और वही अप्रोच यूज कर रहे हैं. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच. ओके, सो क्या करना है अपन को? So there are 3 men, 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machines and 8 men. Okay, so if 2 machines can finish a job in 13 days, कितने आदमी एक काम को 13 दिन में करेंगे? ठीक है, so एक आदमी है, so उसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं 1. एक मशीन है, उसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं n. ठीक है, so 3 men की एफिशिएंसी हो गई 3, 8 men की 8 मशीन्स, उसकी एफिशिएंसी हो गई 8 m. ओके, कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम देन टेकन बाय 3 मशीन्स एंड 8 men. ओके, सो इसको हाफ द टाइम लग रहा है, तो इसको अगर टी टाइम लग रहा है तो 8 men और 3 मशीन को 2t टाइम लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये दूसरे वाले टाइम का हाफ है. टी कट गया. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि वी आर गोइंग टू गेट 3 plus 8m एंड दैट इज इक्वल टू 16 plus 6m. ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 2m comes out to be what 13. So m comes out to be 13/2. So this is going to be 13/2. Okay, fair enough. हाँ, so sorry 13/2. अब क्या है, if 2 machines, so 2 machines का मतलब 2 into 13/2. so ये 2 मशीन की एफिशिएंसी हो गई, they can finish a job in 13 days. so total work हो गया 2 मशीन की एफिशिएंसी into total time will give us total work and total work is equal to कितने आदमी हैं, कितने आदमी चाहिए, x आदमी चाहिए. कितने दिन में काम खत्म करना है, 13 डेज में काम खत्म करना है. so 13 से 13 कट गया, so x comes out to be 13. so कितने दिन में 13 कितने आदमी 13 दिन में काम खत्म करेंगे, 13 आदमी 13 दिन में काम खत्म करेंगे and that's going to be the answer of this question. so basically answer will be 13. so basically if you see this question is also of the same type, same level. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा ठीक है, what does this question says? इस क्वेश्चन को समझते हैं. सो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है कि 6 किलोमीटर रोड बना रहा है, कितने दिन में, 200 दिन में. ठीक है, ही एम्प्लॉयड 140 पीपल फॉर द वर्क. ठीक है, और 60 दिन में 1.5 किलोमीटर काम हुआ. सो बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 140 लोगों की एफिशिएंसी है 1. सो एक आदमी की एफिशिएंसी है 1. सो 140 लोगों की एफिशिएंसी क्या होगी 140. कितने दिन काम कर रहे हैं 60 डेज. सो दैट्स माय टोटल वर्क एंड दिस टोटल वर्क इज हाउ मच 1.5 किलोमीटर्स. ओके, सड़क कितनी बनानी थी 6 किलोमीटर, 6 में से कितनी बन गई 1.5, कितनी बाकी है 4.5. तो अगर 1.5 किलोमीटर इतने के बराबर है तो 4.5 जो होगा वो इसका ट्रिपल होगा. सो जो अभी मुझे काम खत्म करना है दैट इज 3 times ऑफ माय इनिशियल वर्क. राइट, सो ये इतना काम अभी मुझे खत्म करना है. ठीक है, अब इसके लिए उसने क्या किया कि एडिशनल लोग हायर कर लिए. तो अभी नंबर ऑफ पीपल कितना है 140 plus x. राइट, 200 दिन में काम खत्म था, 200 दिन में 60 दिन तो चले गए क्योंकि 60 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है. सो कितने दिन बाकी हैं 140 डेज. सो 140 से 140 कट गया, सो 180 कम्स आउट टू बी व्हाट 140 plus x.
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। सो उसको 40 एडिशनल लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उसका काम टाइम पे खत्म होगा। सो अगेन सेम लाइन पे क्वेश्चन, सिमिलर टाइप, जहां पे बहुत सारे लोग हैं, इफिशिएंसी अज्यूम करनी है, तो हमेशा स्टार्ट विद अज्यूमिंग द इफिशिएंसी एंड वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, working alone, the time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio of 5:8:10। ठीक है, अनु ने टाइम कितना लिया 5x। ओके, सो अनु इज अज्यूमिंग taking time is 5x। तनु कितना ले रही है, तनु ले रही है 8x। ओके, एंड मनु का टाइम कितना है, दैट इज 10x। रेशियो 5:8:10 गिवन है। They accept a job which they can finish in 4 days if they work for 8 hours every day। So इसका मतलब मोटा मोटी 32 घंटे में काम खत्म कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, सो यहाँ पे जो वो है कि इसको 5x लग रहा है, इसको 8x लग रहा है, इसको 10x लग रहा है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अज्यूम द वर्क, कितना वर्क को अज्यूम कर लेते हैं कि 5, 8, 10, मतलब आई एम गोइंग टू अज्यूम टोटल वर्क। दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रीवियस टाइप, जहां पे सबकी इफिशिएंसी अलग है, राइट। सो ये टाइम हो गया, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी कि अनु जो है वो 5x काम 5x टाइम में 40x काम कर रही है, मतलब इसकी इफिशिएंसी होगी 8। इसकी इफिशिएंसी क्या होगी तनु की 5, मनु की कितनी है 4। ये 40x काम खत्म कर रही है 8x टाइम में, तो इफिशिएंसी हो गई 5। ये 10x काम खत्म कर रही है, सॉरी 40x काम खत्म कर रही है 10x आवर्स में, सो 32। सो टोटल इफिशिएंसी तीनों की कितनी हो गई 8 + 5 + 4, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 13, 17, 17। ठीक है, टोटल इफिशिएंसी इज व्हाट 17। ठीक, और ये काम कितनी देर में खत्म कर रहे हैं 32 आवर्स में। So efficiency 17, this is 32। So इसका मतलब मेरा जो टोटल वर्क होना चाहिए वो 17 × 32 होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कुछ तो होगा, पता नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर फर्स्ट 6 days। ओके, वर्किंग 6 hours 40 minutes पर डे। 6 दिन काम चल रहा है, हर दिन 40 मिनट्स को 2/3 बोल देते हैं। सो 6 2/3 आवर्स एवरी डे काम हो रहा है, तो अनु और तनु टुगेदर कितना कर रहे हैं, सो इसको अपन 20/3 बोल सकते हैं। सो अनु और तनु इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 13। ठीक है, इन दोनों ने कितना काम किया, कितनी देर काम किया 6 × 20/3। सो क्योंकि इतने घंटे काम कर रहे हैं, सो टोटल टाइम टेकन इज 6 × 20/3। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 2। उसके बाद कौन काम कर रहा है, उसके बाद काम है मनु का। मनु की एफिशिएंसी क्या है 4। कितने घंटे लगेंगे एच आवर्स लगेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 17 3 are 51, 510 + 34 is going to be 544, and that's equal to कितना हो गया 40 520, and that is equal to 4h। So 4h comes out to be what 24, so h comes out to be 6। मतलब ये इन लोगों ने काम किया, उसके बाद काम छोड़ा, उसके बाद मनु ने शुरू किया, और मनु ने कितना देर काम किया 6 hours, और काम खत्म हो गया। सो बेसिकली इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पे हमको टाइम गिवन है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम वर्क अज्यूम करेंगे। जहां पे हमें बहुत सारे लोग 5 लोग 10 लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वहां पे हम क्या अज्यूम करेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, so now let's start this one। what does it says? Again this is a this type of question जहां पे सबकी efficiency अलग अलग है। Bob can finish a job in 40 days। okay, अकेले अगर काम कर रहा है तो 40 दिन में लगता है। Alex is twice as fast as Bob। ठीक है, so Alex is equal to efficiency of Alex is twice as Bob and thrice as Cole। okay, so that is equal to 3c। so Alex की efficiency जो है वो Cole की thrice है, Bob की twice है।
So I am going to take a common multiple of 1, 2, and 3, coefficient of A, coefficient of B, coefficient of C. So I am going to assume this. So Alex की efficiency है 6, बॉब की हो गई 3 और कोल की हो गई 2. ठीक है. अब बॉब की इफिशियंसी है 3 और बॉब 40 दिन में काम खत्म कर रहा है. इसका मतलब जो टोटल वर्क होना चाहिए वो 40 इंटू 3 होना चाहिए. मतलब टोटल वर्क आ गया 120. ये हमको पता है. टोटल वर्क आ गया 120. ठीक है. आप क्या कह रहा है? आप कह रहा है कि एलेक्स और बॉब साथ में काम कर रहे हैं पहले दिन. ठीक है. सो एलेक्स और बॉब पहले दिन अगर काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे? 9. ठीक है. बॉब और कोल सेकेंड डे काम कर रहे हैं, कितना करेंगे? 5. ठीक है. उसके बाद कोल एंड एलेक्स काम कर रहे हैं थर्ड डे. सो कोल एंड एलेक्स काम कर रहे हैं थर्ड डे, कितना करेंगे? 8. ओके. सो 9, 5, 14, 8, 22 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में. ओके. और उसके बाद सेम रिपीट हो रहा है. दिस 3-day रोस्टर इज गोइंग टू बी रिपीटेड. सो अगला 22 काम होगा कितने दिन में? 3 दिन में. अगला 22 होगा कितने दिन में? 3 दिन में. 66 काम हो गया 9 दिन में. अगला क्या होगा? ओके. अगला 22 मतलब 88 हो गया 12 दिन में. 110 हो गया 15 दिन में. सो 15 दिन में 110 काम खत्म हो चुका है. अगला 22 अगर ऐड कर दिया तो 120 के आगे चला जाएगा. सो अगले एक दिन में कितना काम होगा? 9. So basically these are not fractions. I'm just writing work done in number of days. So don't consider that is 20 by 3. This is not 20 by 3. 22 work is done in 3 days. 22 work is done in 3 days. That's what I'm writing. So अगला 9 काम हो गया 1 day. ठीक है. So 119 वर्क खत्म हो चुका है कितने दिन में? एक दिन में. सो अगले दिन में 1 यूनिट काम 16 डेज में होगा और अगले दिन 1 यूनिट काम होगा और काम खत्म. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स ने कितना काम किया. ठीक है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डे, सो फर्स्ट डे इज 6 + 2. सो एलेक्स ने कितने दिन काम किया? एक दिन. इसमें कितने दिन? एक दिन. सो आउट ऑफ 3 days एलेक्स इज डूइंग वर्क फॉर 2 days. ठीक. सो इन 22 में 2 दिन काम किया. नेक्स्ट 22 में फिर से 2 दिन काम किया. नेक्स्ट 22 में फिर से 2 दिन काम किया. नेक्स्ट 22 में फिर से 2 दिन काम किया. इस 22 में वापस से 2 दिन काम किया. तो बेसिकली अगर 15 दिन काम हो रहा है, सो आउट ऑफ 15 days एलेक्स इज डूइंग वर्क फॉर 10 days. 16वें दिन एलेक्स काम करेगा, मतलब एक और दिन. 17वें दिन एलेक्स काम नहीं करेगा लेकिन काम खत्म हो जाएगा. सो आउट ऑफ 17 days जहां पे काम खत्म हो रहा है, एलेक्स ने कितने दिन काम किया होगा? दैट इज 11 days. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 11. And we have next session on 21st May. That's tomorrow on Wednesday 8:30. That's geometry session 5. And Naveen sir is going to talk about mensuration, the previous year questions. And if you see, we have launched our test series, and All India mock is going to be available on this weekend. So make sure that you register for All India mock. And we have launched one more batch with a guaranteed selection. That's MBA Blackie batch. So if anyone has any doubt, you can ask. Thank you.